आज हम आ गए हैं जेई मेन 2025 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें बहुत सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सिंस ये सेक्शन जीओसी में दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले जीओसी के आईयूपीएससी के 2 क्वेश्चंस थे जो हमने जीओसी सेक्शन में कवर किया है। तो जीओसी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तुम उस पर जाके देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। प्यूरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे हीट दिया गया, यहाँ पे कूल मतलब सब्लिमेशन हुआ, डिस्टिलेशन नहीं किया है, एक्सट्रैक्शन नहीं किया है, क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट इन द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इन द थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर सपोर्ट। ये सही है। Partition chromatography means substance we are removing based on the solubility or maybe the adsorption capacity. तो partition chromatography में stationary phase is a thin film of the liquid. बिल्कुल ठीक है ये वाला statement. In paper chromatography, the material of paper act as a stationary phase. So that is the wrong. The stationary phase in paper chromatography is a water. So that is wrong. So हमारा answer first is right and second is wrong. So answer should be 1. This is also a statement based question. Dumas method is used for estimation of nitrogen in the organic compound. That is right only. Dumas method is only applicable for the nitrogen gas during the volumetric analysis. Dumas method involves the formation of ammonium sulfate by heating of the organic compound with H2SO4. No, this is wrong. This is happen in the Geldal method. In first method only simple. That is the organic compound is converted to the nitrogen gas and through the volumetric analysis we will calculate. So first is right and second is wrong. Then we have direct question number 18. The middle question was the GOC. So please find the GOC video. उसपे हमने सारे cover कर रखे हैं. Then we have a statement based question. Nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus present in organic compound detected by the Lessegner test. Absolutely right statement. The element present in the compound are converted from the covalent form into the ionic form by fusing the compound with the magnesium is Lessegner test. This is the wrong. It was the sodium only, not the magnesium. So first is right, second is wrong. तो तुम देख सकते हो कितने easy question है, थ्योरी बेस है, तो इसको जरूर पढ़ लेना और इस तरह के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया जाता है to get the better score. Let's move to the question number 19. Statement 1. In the Lessegner test, the covalent organic molecule are transformed into the ionic compound. This is absolutely right. Lessegner test में क्या होता है कि सोडियम का एक फ्यूज सिस्टम डाला जाता है ऑर्गेनिक सैंपल में एंड इट वाज कन्वर्ट इनटू द सोडियम साइनाइड Na2S, सोडियम थायोसाइनाइड NaX, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सोडियम फॉस्फेट। तो ये पूरा का पूरा फ्यूज्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट कहलाता है जिसको लेसेग्ने रिएजेंट भी बोलते हैं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, सोडियम फ्यूज एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन एंड सल्फर गिव पर्शियन ब्लू कलर विद द FeSO4 Na4FeCN6. No, that's wrong. Na4FeCN6 further will convert into the Fe4FeCN6 which has the Persian blue color. So second is wrong, first is right, so your answer should be 1. In Carrier's method, the estimation of halogen, 180 gram of the organic compound produce 143.5 milligram of AgCl. So the percent composition of chlorine in the very simple mole concept based question है, सीधा सीधा mole concept लगाएंगे हम balance equation में. The organic sample we have 180 milligram. And we are getting the AgCl that is 143.5 milligram. So basically if we are dividing, we are getting the 1 silver and 1 chlorine. So 1 mole AgCl have the 1 mole of chlorine. So AgCl total molar mass is 143.5. Silver is around 108 and chlorine is around 35.5 grams. So when you are adding this, you are getting 143.5 gram. So this much of gram have the 35.5 gram of chlorine. So they are saying that 143 milligram. So 143.5 10 to the power minus 3 will have the x gram of chlorine. Just do the unitary method and get the answer. So x value, this is getting cancelled. You will get the 35.5 10 to the power minus 3 milligram. 35.5 10 to the power minus 3 gram. Since they are asking the percentage of chlorine, so we have 35.5 10 to the power minus 3 divided by the organic sample we have 180 milligram 10 to the power minus 3 into 100. So when you solve this, you are getting 19.72 percentage. So your answer should be 19.72. Approximate 20 percentage you can mark it. Next question we have, during sulfur estimation 160 milligram of the organic compound gives 466 milligram of the barium sulfate, the percentage of the sulfur. Similar type of the question that BaSO4 is contained the barium, 1 sulfur and 2 of oxygen. You can divide this equation like that way. 1 mole is giving the 1 mole of sulfur
So barium sulfate molar mass, this is given 137, sulfur 32 and oxygen 16. So when you are adding everything, we are getting 233 gram of the BaSO4 will give us the 32 gram of the sulfur. Here the barium sulfate is given 466 milligram, so will give us the x gram of sulfur. Just do the unitary method. On calculation, you will get it. That is 64 milligram. And finding the percentage of the sulfur. So X is nothing but the sulfur. So sulfur percentage would be is equal to 64. Sample mass is how much? 160 milligram. Okay, that is also milligram. So this is also milligram. So unit conversion we no need to do further. We will get it the 40%. So your answer should be 40. Next question, Carrier's method of estimation of halogen 0.25 gram of organic compound gave 0.15 gram of the AgBr. The percentage of bromine. तो तुम देख रहे हो ये थर्ड क्वेश्चन आ गया है जो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे पूछा गया है, मोल कॉन्सेप्ट पैटर्न पे. सिंपली जस्ट राइट दैट AgBr is giving us 1 silver and 1 bromine. So the molar mass 108 and 80. तो आ गया, this is the 188 gram of the AgBr is giving us bromine how much? That is 80 gram. So 0.15 gram of the AgBr will give us the x gram of the bromine. Just apply the unitary method. 80 into 0.15 divide by 188. इसी में ही divide कर देते हैं sample mass का, that is 0.25 into 100. So this will give us the bromine percentage and we will get it answer 255%. We have a next question. In the sulfur estimation, this much of pure organic compound gave this much of barium sulfate. The percentage of sulfur. You can see लगातार 4 क्वेश्चन हमने सिमिलर पैटर्न पे किए हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का हमसे बन जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी छोड़ना नहीं है, इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ. ये मार्क सकिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं. Organic sample is giving us the BaSO4 which contain the 1 sulfur only. So here we know that 1 mole per 1 mole चल रहा है, right? So the total molar mass of BaSO4 is 233 gram. This is 32 gram. So here barium sulfate is 0.40 gram. So that should be the x gram. Apply the unitary method. X should be is equal to 32 into 0.40 divide by 233. सैंपल मास को यहीं से डिवाइड कर देते हैं 0.20 into 100. ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट इट टू 75%. बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी चल रहा है, तो इस बात का याद रखना है कि थोड़ा सा प्रॉपरली कैलकुलेशन करो. इंटीजर टाइप में थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाता है. तो जनवरी शिफ्ट के बाद अब हम अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं जेई मेन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के. लेट्स सी कि अब इसका लेबल कैसा आया हुआ है. हाउएवर ये सेक्शन बहुत ही इजी है, सीधा सीधा है ना, प्रैक्टिकल बेस और थ्योरी बेस है, तो इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए. एनसीईआरटी में जीओसी के पीछे वाले सेक्शन में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी है. लेट्स डू द क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 इसलिए आ रहा है क्योंकि 10 तक 11 तक की जितने क्वेश्चन थे वो जीओसी में थे, जो हमने जीओसी के वीडियो में डाल रखे हैं. दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द कैमटाइक चैनल. तो पहले वहाँ जाके जीओसी के क्वेश्चन कर सकते हो, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करना है तो यहाँ पर. लेट्स स्टार्ट. तुम देख रहे हो ये मैच द कॉलम है, तो सबसे पहले हम उस ऑप्शन को मैच करते हैं जो सबसे ईजियर फील होता है. तो डीजल और पेट्रोल अगर देखा जाएगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालते हैं, तो बी से 1 मैच हो रहा है. तो लेट्स सी किस ऑप्शन में हो रहा है. ओ बहुत बढ़िया, बी है ना 1 से मैच हो रहा है एक ही ऑप्शन में, तो हमारा बेसिकली आंसर हमें ऑलमोस्ट मिल गया है. फिर भी एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम. क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को अगर जाएंगे, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन इज मेकिंग विद द सिंपल डिस्टिलेशन, सो 1 इज मैचिंग विद द 3. ओह वेरी गुड. तो ये हो गया हमारा आंसर कंफर्म. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. 4 इज द राइट आंसर. हाउएवर बाकी भी देख लेते हैं. डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, सी इज मैचिंग विद द ग्लिसरॉल एंड स्पेंटलाइन, और स्टीम डिस्टिलेशन से मैच होने वाला है हमारा, दैट इज एनिलीन एंड वाटर. क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर पैटर्न में दे रखा है दूसरी शिफ्ट में जनवरी. क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर पैटर्न में दे रखा है. इसका मतलब है कि अप्रैल शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट हुई होगी उसमें कहीं ना कहीं किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 12 आया होगा, किसी में 13 आया होगा. तो पुरानी शिफ्ट को रिवाइज कर लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी से सिमिलर मैच होता है. इसमें भी हम किसी एक को चूज कर लेते हैं जिसको हमें पता है, जैसे एनिलीन वाटर अभी किया है. एनिलीन एंड वाटर इज मैचिंग विद द स्टीम डिस्टिलेशन, तो 1 is matching with the 4. Let's see. Oh, 1 is matching with the 4 only in first option. तो हमारा आंसर आ गया. Crude oil और petroleum is matching with the 2. So C is matching with the 2. Very good.
Glycerol and spentline is matching with the distillation under reduced pressure and the chloroform and aniline is matching with the simple distillation. तुम्हारा आंसर मैच हो चुका है नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी के पीछे जीओसी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, इन डुमास मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.5 gram of the organic sample gave 60 ml of nitrogen collecting at 300 Kelvin and 715 mm of mercury. The percent composition of nitrogen in the compound. Aqueous tension दे रखा है, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर भी दे रखा है। तो देखो डुमास मेथड इट्स ओनली एप्लीकेबल व्हेन द कंपाउंड इज रिलीजिंग द नाइट्रोजन। तो पहले हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसके वॉल्यूम को निकालना होता है। तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, जहाँ इसको हम STP मान लेते हैं और ये वाले जो गिवन कंडीशन है वो। नाउ कीप द वैल्यू एंड फाइंड आउट। P1 हमारा है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, T होता है 273.15। 0.15 लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर, क्योंकि ऑप्शन है ना इतना क्लोज भी नहीं नजर आ रहे हैं। V1 हमें निकालना है, P2 दे रखा है कितना 715, उसमें से 15 को माइनस कर देंगे क्योंकि वाटर वेपर को माइनस करना होता है। तो ये हो गया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। V2 कितना दिया है 60 ml एंड टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। इससे हमारा V1 निकल गया। तो मोल्स निकालने के लिए V1 डिवाइडेड बाय द 22.4 लीटर करेंगे एंड सिंस ये ml है तो मैं इसको भी ml में ही चेंज कर देती हूँ, 22400 ml कर। तो V1 की वैल्यू पुट करके और 22400 कैलकुलेट करके वी आर गेटिंग आंसर। लेट मी कैलकुलेट एंड राइट इट। 2.24 10 टू पावर -3 मोल्स आ गए। इसी को ग्राम में चेंज कर लेंगे तो 2.24 10 टू पावर -3 इंटू 28, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 0.06272 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इजियर 0.06272 divide by 0.5 sample mass into 100 and we will get it around 12.57%. That should be answer. तो क्वेश्चन अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं रीड कर रही हूँ। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डुमास मेथड कंपाउंड X गिवन है जिसका मास दिया हुआ है 0.42 ग्राम। ml निकालना है, दिस इज द ml ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एट STP। ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बेसिकली निकालना। सो व्हाट वी कैन डू, ये एक कंपाउंड दिया है, साइक्लिक कंपाउंड है एंड ये कंपाउंड मस्ट बी रिलीजिंग द नाइट्रोजन गैस, तब जाके हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते। तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस लगा रही हूँ क्योंकि हमें पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम लगा देंगे नाइट्रोजन के लिए। और नाइट्रोजन तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन होता है दैट मोल्स ऑफ वन कंपाउंड, मैं इसमें X के कंपाउंड इंटू नाइट्रोजन के एटम कितने हैं 2 हैं, एक ये रहा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन एन, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 कैंसिल कर दिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएंगे। मोल्स को लिखते हैं गिवन मास विच इज 0.42 डिवाइड बाय द मोलर मास। अच्छा, अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे, ये पूरा CH2 है, CH2 ऑन कैलकुलेशन तुम्हारा मोलर मास आ रहा है 86। तो ये मोल्स आ गए। अगर इसी में ही मैंने वॉल्यूम 22.4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.42 बाय 86 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि मोल जो होते हैं वो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय द 22.4 भी होता है लीटर में। इससे हमारा आंसर आ गया 0.1108 लीटर which is 11.08 ml. That should be answer. We have in Dumas method the estimation of nitrogen 1 gram of organic compound gave 150 ml of nitrogen, 300 K and 900 mm of mercury. Question is also given, percent composition of nitrogen हमें निकालना है। पूरा क्वेश्चन नंबर 14 का कॉपी है, तुम इसको अपने आप से ट्राई करो and let me know कि what is the answer is coming. For your final proof, I am giving the answer. If you get it, let me know in the comment box that you will get it the question number 17. Question number 18, in Dumas method 292 milligram of organic compound release 50 ml of nitrogen, 300 Kelvin temperature, this much of pressure, nitrogen composition, aqueous tension is given. It's a similar type of the copy paste question. You have to do it by your own. Let me know the answer of the question 18 also. So that is homework for you. You try by your own, so you also will get little practice to do in the examination. Thank you so much for staying with me and revising with me the practical chemistry. हम और भी ऐसे वीडियो लेकर आ रहे हैं, लोग बस प्रैक्टिस करो और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।